we are very curious to know about your journey, sir. So first question is, sir, how did the idea of provider app come up, sir? See, this is not a unique idea. We all are student. बिजनेस जो है सर फुल ऑफ रिस्क है सर, उसको माना जाता है जो एंटरप्रेन्योरशिप में सर। सर आप फेलियर को कैसे आप मैनेज करते हैं सर? आपको बहुत सारे इस जर्नी में उतार चढ़ाव आए होंगे सर, कैसे मैनेज करते हैं सर? See, मैंने बताया कि मेरा थोड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस। हेलो हेलो हेलो। So, hello everyone. Today we have Audesh Chaudhary sir, CEO and co-founder of Provider App, which is very well known and helpful to all the student to finding the best hostel nearby the college. So, first of all, thank you so much, sir, for giving this opportunity to podcast with us. So, I am Kushal Keshri, host of the today podcast, and my co-host Ankit, Aishan, and Aman. So, Hello, how are you everyone. feeling today? I'm good. How are you? We are all fine, sir. Okay. So we are very curious to know about your journey, sir. So first question is, sir, how did the idea of provider app come up, sir? See, this is not a unique idea. We all are student and we all are facing this kind of problem in every student life. So when we are at our school journey, or you can say like initiation of our college journey, Yes, sir. in our 12th, when we pass out our 12th, so we go for we went for our coaching duration like in Kota, and my co-founder like Mr. Praveen went for in Varanasi for their JEE coaching. Yes, sir. And then we faces these kind of problems, like we struggling for PGs and hostels in their at that stage. And then we came in our college scenarios like in 2018, we face same problem at that time. And this is the problem of everyone, of every student when they migrate from like home city to another city, right? Then we think about we discussed like how we can resolve this kind of problems to for every students, right? And then we met we and discussed this idea, and we initiate like how we can solve this problem. And we taken survey of lots of students, lots of PGs owners, and lots of teachers, and all the related to the students and all community. And we started from Varanasi in 2021, and we started initiation for the with the survey of the students, and then we go for the market validation for this idea, like this will work or not. And in 2021 we initiated in Varanasi, and then we started in Greater Noida as well. Yes, And sir. then right now we are already in 7 cities in India. So this is the basic journey. So what is the, sir, initial level of your struggle, sir, when you, sir, building this? So no, we can't say like kind of struggle. जब हमने स्टार्ट किया था तो एक काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम था जो हमारे लिए बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा था. एंड देन हमें लगा कि इस प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करते हैं. और उस प्रॉब्लम में बहुत सारे मतलब चैलेंजेस आते थे. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंप्लीट करते थे, दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती थी. तो ऐसा नहीं था कि ये स्ट्रगल फेस कर रहे थे हम क्योंकि हमें अपने मनपसंद का काम करने को मिल रहा था. हम जिसके लिए जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत कर रहे थे, या जिसको चाह रहे थे कि सॉल्व हो जाए, वो हमारी पूरी कम्युनिटी में सबका प्रॉब्लम था. तो स्ट्रगल नहीं था, एक काइंड ऑफ की अपनी मस्ती में हम लोग काम कर रहे थे और मजा आ रहा था. So that's great, sir. सर मतलब आपने ये चीज़ फेस कैसे करा कि कॉलेज भी एंड देन ये सारी चीज़ें ऐसे लाइक अभी मेरे को भी
वो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ ना, तो मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता एकदम से, या बहुत सारी चीज़ है। ये चैलेंज सारे स्टूडेंट्स का रहता है, क्योंकि आप जिस हम बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक हम पूर्वांचल बिहार से मेजोरली बच्चे, या इवन कहें कि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का भी यही कंसर्न रहता है कि बच्चा पढ़ने गया है तो सिर्फ पढ़ाई करे, किसी और चीज़ पे फोकस ना करे। सेम हमारे टीचर्स का भी रहता है कि लाइक वो पढ़ने आए तो सिर्फ पढ़ाई करे और बाकी चीज़ों पे फोकस ना करे। इवन हम जिस कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना इन्वॉल्वमेंट रखने को मना किया जाता था। तो ये चैलेंजिंग रहता है मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा। और हम लोगों ने हमारा ये था कि लाइक हमें जॉब नहीं करनी है, लाइक हमारा डे वन से क्लियर था, क्योंकि मैं भी बिजनेस फैमिली से ही आता था। तो ये था कि डे वन से क्लियर था तो जॉब तो नहीं करनी है, तो उसके लिए अब या तो टीचर का रोल ब्रेक करना था या तो अपना रोल ब्रेक करना था। सो हम लोगों ने अपना रोल ब्रेक करना नहीं जरूरी समझा, हमने टीचरों का रोल ब्रेक किया कि लाइक हमें जॉब नहीं करनी है और किसी तरीके से हम कॉलेज के ड्यूरेशन में कुछ अपना करना होता था या कॉलेज का बंक मार के हम लोग वो चीज़ करते थे। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोगों ने वो चीज़ किया एंड देन किया इस चीज़ को। तो सर आपके पेरेंट्स का पहला क्या था, मतलब कि इंटरेक्शन कैसा था कि जब ने उनको बताया कि मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ बिजनेस, मतलब कि ऐप बनाने वाला हूँ ऐसा जो सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उनका कैसा फील हुआ, उन्होंने क्या फिर रिएक्शन क्या था उनका? मेरा इसमें कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के सजेशन है कि जब भी कोई भी बच्चा कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें या जो भी अपने कलीग्स को है वो इन्फॉर्म करें, टीचरों से परमिशन लें। जबकि हम जितनी भी डे लाइफ में गलत काम अच्छे काम करते हैं उसके लिए एक बार भी पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा अगर मैं ये पेरेंट्स से बोलूंगा कि मैं कॉलेज छोड़ के या मैं कॉलेज की पढ़ाई ना करके मैं एक स्टार्टअप की तरफ जाऊंगा या कुछ भी ऐसा करने की सोच रहा हूँ, तो उन्हें लगेगा कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। सेम फॉर टीचर्स का भी रहता है कि बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है। तो मेरा और हमारे जो फाउंडर्स का मतलब हमारा डिस्कशन था उसमें ये था कि मतलब खैर वो तो फैमिली से बहुत ही फ्रेंडशिप माहौल में रहता है, तो उसने तो बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। मेरे फैमिली में ऐसा नहीं था, थोड़ा रिस्ट्रिक्शनेस थी, तो मैंने नहीं बताया घर पे कि मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ हमारा, क्योंकि कॉलेज लाइफ चल ही रहा था, कॉलेज के ड्यूरेशन में कर रहे थे, तो बताने की जरूरत मैंने जरूरी नहीं समझा। तो पूरी हमारी थर्ड ईयर और पूरी फोर्थ ईयर में मैंने घर पे कुछ भी नहीं बताया। जब हमारी कंपनी लॉन्च हो गई, 2 सिटी में रन कर रही है, एंड जब हमारा प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब मैंने बताया। जब हमारी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी थी, 6 महीने पुरानी हो चुकी थी, हम रेवेन्यू फेज में थे, तो हमने घर पे बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया था और अभी हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम पर जो आप ये ऐप चलाते हो, ये आपको ये मैनेज कैसे करते हो? ये मतलब जैसे कुछ कोई प्रॉब्लम्स आ जाए ऐप में तो उसको फेस कैसे करते हो? पहले तो मैं खुद बीटेक किया हूँ और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना ही सिखाया जाता है। तो आज रही बात ऐप की, तो हमें ऐप बनाने भी आता है और ऐप चलाने भी आता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे इतने सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ ही बीटेक पास आउट हैं, तो उनसे भी हम सजेशंस ले लेते हैं। तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है ऐप बनाना और ऐप को रन करना, तो ईजिली हो जाता है मैनेज। सो सर नाउ कमिंग टू द बिजनेस क्वेश्चन सर। सर ये स्टार्टअप जो आपका है सर, वो बुश स्टार्टअप है या फंडेड किया हुआ है? टोटली बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप है हमारा डे वन से, और अभी तक हमने किसी से भी कोई फंडिंग नहीं ली। यस सर। हमें गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिले हैं, बट ग्रांट्स लिया है हमने, फंडिंग किसी से नहीं लिया। सर तो आप कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम भी रन करते हो ऐसा? नहीं, कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं, हमारा अपना ही सारा मतलब सिस्टम है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं हमारी खुद की टीम मैनेज करती है, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो यहाँ पे कितने सारे हॉस्टल्स आपसे एफिलिएटेड मतलब कनेक्टेड हैं? जो भी हॉस्टल्स वेरीफाइड होते हैं, हमारा एक पैरामीटर्स होता है कि अगर इस टाइप के हॉस्टल्स या हमारी क्राइटेरिया उन पे फिट बैठती है तो उनको हम अपने ऐप पे ऑन बोर्ड करते हैं। अगर वो थ्रू आउट द ईयर उनके सजेशंस या उनके रिव्यूज खराब जाते हैं तो उनको डिलीट भी कर दिया जाता है। पहले बार यहाँ पर आया हुआ था सर, तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पर है, तो आपका सर कैसे मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोकर्स ऑफलाइन के लिए है और प्रोवाइडर ऐप ऑफलाइन काम नहीं करता है। हमारा डे वन से मोटिव था, जैसे हम आप कॉलेज की इंक्वायरी 2 महीने 3 महीने करते हो, जहाँ पे आपका कैरियर सेट होता है। कैरियर में सबसे ज्यादा आपको बैरियर्स क्या क्रिएट करेगा, आपका सराउंडिंग्स। उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो, क्या रिसर्च करते हो, या उसके लिए कितने कंटेंट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, कुछ भी नहीं था। जब हम लोगों ने इनिशिएट किया तो डिजिटली कोई भी हॉस्टल पीजीज या इवन
मतलब कोई भी एकोमोडेशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप ग्रेटर नोएडा के उठा के आप चैनल्स देखना या कोई भी वीडियोस खोजने की कोशिश करना नहीं मिलेगा। जब हमने इनिशिएट किया तो पूरे ग्रेटर नोएडा को हमने डिजिटलाइज किया, पूरे बनारस को हमने डिजिटलाइज किया कि एक एक हॉस्टल के आपको वीडियो अवेलेबल होंगे, लोकेशंस अवेलेबल होंगे, जीपीएस लोकेशन अवेलेबल होंगे, कैसा रूम दिखता है, क्या प्राइसिंग होती है, सब कुछ घर बैठ के। जैसे आप कॉलेज के बारे में हर एक चीज इन्फॉर्मेशन निकालते हो, रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज क्या है, वो सारा कुछ हमने डिजिटलाइज किया कि घर बैठ के बच्चा हॉस्टल के बारे में भी, जहाँ उसे रहना है। कॉलेज में तो आप 6 से 8 घंटे रहते हो, बाकी 15 घंटे 16 घंटे तो आपको हॉस्टल या पीजी में रहना है, जहाँ आपका मेन चीजें वही होनी है, क्योंकि आप कॉलेज में तो जाके नॉलेज गेन करते हो, उसका आके यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल या जो सेल्फ स्टडी कह सकते हैं वो जाके आपको अपने रूम पे ही करना होता है। वो कितना इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए कोई नहीं सोचता। तो उस चीज को लेकर के हम लोगों ने इनिशिएट किया था और उस पे में किया। तो सर आपके साथ अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब? हमारे हर सिटी में अपनी टीम है और लगभग करंट टाइम में हमारी 50+ की टीम। सर और आपके जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ऐप है सर, तो उसमें सर कोई कॉम्पिटिटर है कि नहीं अभी तक सर उस मार्केट में सर? कंपटीटर डायरेक्टली कोई नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत सारे हैं। लाइक एक कॉलेज में सीनियर है, वो भी अपने जूनियर को हॉस्टल रिकमेंड करता है कि सर ये जैसे प्रोवाइड के जैसे ऐप के माध्यम से सर? ऐप के माध्यम से कोई भी नहीं है, अभी तक नहीं है सर। मतलब अभी मतलब कि अभी रिसेंटली कितना रेवेन्यू जनरेट वगैरह हो जाता है, लाइक अभी आपके इसमें कितना हॉस्टल्स अभी वो है? हॉस्टल्स तो हमारे सिटी में जैसे मैंने बताया कि जो वेरीफाइड होते हैं हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं। मोर देन हमारे पास 1000+ प्रॉपर्टीज एडेड है ऐप पे हमारे। और इन टर्म्स ऑफ बेड्स की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, तो मोर देन अराउंड 50,000+ बेड्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप सिर्फ हॉस्टल्स में ही डील करते हो या फिर बच्चों को जैसे पीजी चाहिए होता है, रूम अवेलेबल कराना हो मतलब चाहिए होता है, तो इन सब में भी आप डील करते कराते हैं। लाइक जैसे आप बनारस में आप हमारा चलता है, तो बनारस में तो 2000 का रूम भी आपको प्रोवाइडर ऐप पे मिल जाएगा, 1500 का भी रूम मिल जाएगा, Yes. क्योंकि वहाँ उस टाइप के रूम अवेलेबल है। ग्रेटर नोएडा में वो चीज नहीं है अवेलेबल नहीं? इस वजह से वो चीजें यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी आपको। अदरवाइज बनारस में आपको फ्लैट चाहिए, फ्लैट अवेलेबल है विदाउट ब्रोकरेज, रूम चाहिए, रूम अवेलेबल है, हॉस्टल चाहिए, वो भी अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशन की वहाँ क्या चीजें अवेलेबल है क्या जैसे कि सर ये सर्विस बिजनेस है सर, तो सर्विसेज बिजनेस में सर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के रिव्यू आते रहते हैं सर। नहीं। तो सर नेगेटिव रिव्यू जो आते हैं सर कैसे आप डील कर पाते हैं सर, कैसे मैनेज करते हैं सब चीज फ्रॉम स्टूडेंट्स एनी काइंड्स ऑफ? सर्विसेज में आपको मेजरली आप डायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं रहती है आपकी, क्योंकि हम किसी और की सर्विस आपको पूरा 2 टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक तो होता है कि लाइक मेरी कोई सर्विस है खुद की और मैं आपको यूजर को B2C डायरेक्टली कर रहा हूँ। एक तो है कि मैं किसी B2B का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ और B2C को सेल कर रहा हूँ। तो उस केस में हमें चैलेंज आता है कि लाइक अगर B2B ने कोई सर्विस खराब करी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। यस सर। बट उस केस में यूजर जो भी है उसको समझना पड़ेगा क्या वो मेरी वजह से हो रहा है या B2B की वजह से हो रहा है। उस चीज को हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि ज्यादा हद तक हम उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे अब हमारा बिजनेस मेन हॉस्टल्स एंड पीजीज का है, तो बच्चे को हमारा मेन प्लेटफॉर्म क्या करता है कि जो चीजें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक सही बजट में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के उसकी बुकिंग कराना। अब थ्रू आउट द ईयर वहां कहीं ना कहीं वो रहेगा पूरे साल, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे साल में कोई चैलेंज आए ही ना। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेटर नोएडा जैसे मैं सिटी की बात करूं तो यहाँ पे एक दिन में 4 बार आपको खाना मिलता है, महीने में 120 बार। ठीक है, और बच्चे की मनपसंद क्या चीज है क्या नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। और 120 बार खाना बने, 20 बार भी खराब ना बने या टेस्ट खराब उसको ना लगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में बच्चे को समझना पड़ेगा क्या वो मेरी गलती है या हॉस्टल वाला जानबूझ के कर रहा है या क्वालिटी मैटर करती है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। बच्चा समझदार होता है तो उस चीज को कंप्लेन करके रिजॉल्व कराता है, नहीं होता है तो हमें वो खराब रेटिंग देता है। हम फिर भी उस चीज को मतलब ऐसा नहीं है कि डिसऑनेस्टली लेते हैं कि नहीं यार वो खराब क्यों दे दिया, चीजें क्या कर दी। हम उस पर ट्राई करते हैं कि उस पर हम एक्शन लें, ओनर से हम बात करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर्विस बिजनेस में ये चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो सर मतलब कि अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे, तो इनका जो कट थ्रो कंपटीशन है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऐप पे, ऐसा कुछ कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? हॉस्टल्स का कट थ्रो कंपटीशन आपस में होगा ना, हमारे लिए तो सारे सेम है। लाइक कोई भी कस्टमर हो, मतलब कोई भी हॉस्टल हो या कोई भी पीजी हो, हमारे लिए तो हमारा कस्टमर है। जैसे कि वो भी अपना प्रमोशन करते रहते हैं, तो उनको वो अपना खुद से प्रमोशन कर रहे हैं और आप ऐप जो हुआ तो वो डायरेक्टली विजिट के वगैरह वो डायरेक्टली आपके उस पर तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता हो?
पड़ता है। बिल्कुल उसी चीज को तो हमने रिजॉल्व किया। पहले क्या था, लाइक सपोज एक कोई छोटा पीजी वाला है, अब आपको ही पता है एक पीजी और एक हॉस्टल वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है बहुत ज्यादा, या उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो सारी चीजें कर पाए, सारे टेक्नोलॉजी यूज कर पाए, डिजिटल मार्केटिंग कर पाए, बच्चों को वर्चुअली विजिट करा पाए, उसके फोटोज वीडियो शूट करे, ऐड चलाए, नहीं कर सकता। कुछ लोग करेंगे जिनके पास मेजर स्टेक्स हैं या बड़े सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें, लेकिन जो छोटा हॉस्टल है वो तो नहीं कर पाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन अपने 4 बंदे खड़ा करता है, जो भी उसके एक हाथ पैर मार सकता है वो करता है। और प्रोवाइडर ऐप के आने से उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि हम सबके लिए मार्केटिंग करते हैं, पूरी ट्रैफिक एक जगह जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। काइंड ऑफ की एक मार्केट प्लेस हमने क्रिएट कर दिया कि एक ही जगह बैठ के आपने गूगल पे क्या जाता, जो भी चीजें सर्च करनी होती है सर्च करते हो आप, क्योंकि वहां सारी चीजें अवेलेबल है। सेल्फ प्रोवाइडर ऐप, अब सारी चीजें अवेलेबल है। अब जो एक बंदा बेसिक मार्केटिंग के लिए अपना पूरा दिमाग लगाता था, जो उसको नॉलेज थी, अब उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल तक की मार्केटिंग हो रही है कि पूरे इंडिया में उसके हॉस्टल को सब लोग देख रहे हैं, चाहे उसको लेना हो या ना लेना, एटलीस्ट वो देख पा रहा है। तो उसकी मार्केटिंग पैन इंडिया हो रही है। पहले वो चीज नहीं कर पाता था वो, क्योंकि उसके पास उतनी मार्केटिंग का बजट नहीं था, तो वो चीजें होती, तो उसका तो बेनिफिट हो रहा है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट हम बचा रहे हैं, तो उसका कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, उसका कंपटीशन कम हो रहा है, उसको बैठे बैठे बिजनेस मिल रहा है। तो सर अच्छा एक बात पूछनी थी कि आपको मतलब हॉस्टल सेलेक्ट करने के लिए आपकी क्या क्राइटेरियाज होती हैं ऐसे? हमारे पैरामीटर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसका बजट कितना है एंड ऑल। सपोज कोई 1 लाख का हॉस्टल दे रहा है, तो उसमें क्या क्या एटलीस्ट क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो गवर्नेंस होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। तो उसमें पैरामीटर्स, हमारे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक फायर सेफ्टी है नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं है, सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है, खाना कितने टाइम देता है, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं है, ठीक है, वार्डन कितने स्किल्ड लेवल लाइक एक्सपीरियंस है नहीं है, मतलब ये सारी चीजें हम देखते हैं। गर्ल्स के केस में क्वालिटीज के रिलेटेड फूड क्वालिटी में हम लोग, अब इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे का मिथ हो जाता है फूड क्वालिटी कैसे है। नहीं, अगर कुछ फूड में ऐसा कुछ हो गया खराबी, मतलब वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है अलग, लेकिन अगर कुछ फूड में ऐसा हो गया बाय चांस बाय द वे, ठीक है, फूड ऐसी चीज है कि जिससे जैसे अब हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि फूड से कोई भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का खाना वो महीने भर खाएगा, नहीं अच्छा लगेगा। दूसरी बात, क्योंकि हर स्टेट से बच्चा आ रहा है, हर शहर से बच्चा आ रहा है, तो एक टाइप का खाना भी हॉस्टल में नहीं बनता, ट्राई करते हैं वो अलग अलग मेन्यू फॉलो करते हैं। उस केस में क्या होता है, बच्चे का टेस्ट डिफर करता है, और जब टेस्ट डिफर करता है तो उसको खाना खराब बोलता है। अब खाने खराब में हमारा जो जजमेंट वो होता है कि इंग्रेडिएंट खराब है या टेस्ट खराब है। अगर टेस्ट खराब है तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, अगर इंग्रेडिएंट खराब है कि लाइक उसमें जो तेल मसाला और बाकी चीजें पड़ रही हैं वो खराब है, तो इट मीन्स कि वो हॉस्टल ओनर की गलती है। उस केस में हम एक्शन लेते हैं कि लाइक अगर कोई ओनर कोई खराब चीज खिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा चीज निकल रहा है, तो उसमें हम भी एक्शन लेते हैं कि ओनर को एटलीस्ट एक बार को समझाने की कोशिश करते हैं या बातचीत करते हैं कि ऐसा आगे से ना हो, ताकि हमारे यूजर परेशान ना हो। बट अगर टेस्ट डिफर करता है तो वो तो पर्सन टू पर्सन है, उसमें हम कितना ही एक्शन ले लें कोई फायदा नहीं होने वाला। सर आपने ये कहा फायदा नहीं होने वाला, सर ये वैसे कि जैसे कि किसी स्टूडेंट ने आपके ऐप के द्वारा हॉस्टल लिया, तो जैसे कि उसको एक 2 हफ्ते हो गए, खाना अच्छा नहीं लगा उसको, वो मतलब जैसे कि कोई होता है कि अलग देश आता है, मतलब सिटी से आता है, उसको दूसरी सिटी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, पर वो जैसे कि वो एडजस्ट नहीं होने वाला कि वो उसको हॉस्टल आपके थ्रू मिला है, तो आपसे बोल रहा है कि सर ये खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मतलब जैसे कि फैसिलिटी तो अच्छी नहीं मिल रही है मेरे को, जैसे कि लाइट जा रही है और एसी अच्छे से नहीं चल रहा है, तो प्रोवाइडर सर आप ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि वो फ्लैट में शिफ्ट होना चाहता है, हॉस्टल में नहीं, आपको कैंसिल करना चाहता है, और वैसे तो हॉस्टल में ऐसा होता है कि रिफंड नहीं होते पैसे, पर फिर भी वो आप हर कोई समझाता है, जिसके आप भी समझाओगे, जैसे कि आपको कॉल करेगा वो ऐप के थ्रू, तो जिससे कि आपको समझाओगे, फिर भी नहीं वो समझता है, फिर आपकी ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो? देखिए आपको जो रूल है वो सबके लिए सेम होगा। जैसे आपने बोला कि अगर उसको हॉस्टल में नहीं रहना है, फ्लैट में रहना है, अब आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मंगाते हैं, अब आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो आप, ना रिटर्न नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या करोगे? कितना भी कंप्लेन करोगे वो नहीं होने वाला। उसका रीजन है क्योंकि उस तरीके से उन्होंने पॉलिसी डिजाइन करी, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके साथ डेली फ्रॉड होगा। सेम चीज हॉस्टल में भी है। अब बच्चों को अगर वो रिटर्न पॉलिसी दे देंगे तो 1 महीने बाद आपके या 10 दिन बाद आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप चाहोगे कि उनके साथ सब लोग साथ में रहो, हॉस्टल में कोई नहीं रहना चाहेगा तो सब फ्लैट में चले जाएंगे। और आपको भी पता है कुछ सिटीज में, जैसे ग्रेटर नोएडा सिटी की मैं बात करूं, यहाँ पे बच्चा सीजनल आता है, लाइक यहाँ पे एडमिशन टाइम होता है, देन उसके बाद थ्रू आउट द ईयर क्लासेस चलती हैं।
इस केस में तो आप अपना काम कर लेंगे कि लेकिन 1 महीने बाद हॉस्टल खाली कर देंगे, 8 महीने हॉस्टल खाली रहेगा, तो उसका तो नुकसान हो रहा है। इसीलिए पॉलिसी डिजाइन, आप जैसे आपने बोला एसी नहीं चल रही है, खाना खराब मिल रहा है, तो एक बच्चे को सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे हॉस्टल को आएगी। उसके लिए पूरी एसोसिएशन है, आप हॉस्टल में कंप्लेन करिए, वार्डन है, पूरा एक सिस्टम क्रिएटेड है। कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स ऐसे हॉस्टल में अपने बच्चे को नहीं रखना चाहेगा जहाँ पूरा ऐसा प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसके लिए कंप्लेन सिस्टम है। यहाँ पे आपका एसोसिएशन है, कॉलेज खुद भी इन्वॉल्व रहता है, लोकल बॉडी अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए पुलिस सिस्टम है, तो उस पर भी आप एक्शन ले सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडर ऐप का इसमें क्या रोल होता है कि हम वही, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कन्वे किया कि एक्शन जो है उसमें क्या किया जा सकता है कि अगर वो हॉस्टल वायलेट कर रहा है, कि हॉस्टल की गलती है, तो उसमें हम भी इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे के साथ खड़े होते हैं, हम उसके साथ जाकर के ओनर से बात करते हैं, हमारी टीम वहां पहुंचती है, या जो भी चीज एक कॉल पे कन्वर्सेशन हो सकती है वो चीज करती है। बट अगर पता है कि लाइक एक बच्चे की गलती हो रही है, कि लाइक उसका मन नहीं लग रहा है, उसको अब मन है कि हॉस्टल में शिफ्ट होना है, तो उस केस में हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि हॉस्टल की पॉलिसी तो हम नहीं ब्रेक करेंगे, और हम अपने टर्म एंड कंडीशन पे बुकिंग नहीं कर लेते हैं ना। हर हॉस्टल की अपनी पॉलिसी होती है। जब भी हम किसी हॉस्टल में किसी बच्चे को बुकिंग करा रहे होते हैं, तो ट्राई ये रहता है कि उस हॉस्टल की जितनी भी पॉलिसीज हैं, क्या पेमेंट सिस्टम क्या होना चाहिए, रिटर्न सिस्टम क्या है, कि लाइक अगर उसको नहीं रहना है क्या पॉलिसी रहेगी, वो सारा कुछ हम उसको कन्वे करते हैं, सो दैट कि बाद में क्लियर रहे उसको। जस्ट लाइक कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पूरी आप पढ़ते हैं, सेम चीज। सर अभी आपके प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर हैं सर? प्लेटफॉर्म पे हमारे मोर देन 50,000 प्लस यूजर है। 15,000 सर आप 50,000 प्लस यूज़र मैनेज कैसे करते हो? लाइक मेरे अंदर अभी 30 से 40 है वर्कर है, बट मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता। ये तो टेक्नोलॉजी डेली 30 से 40 हजार नहीं है, अब तक हमारे 50,000 से ज्यादा डाउनलोड्स और यूजर्स रह चुके हैं। मैं उसके बाद डेली एक्टिव यूजर की आप बात करोगे, डेली एक्टिव यूजर हमारे पास अराउंड 2 से 3,000 रहते हैं। तो वो उनकी इंक्वायरी सब टेक बेस्ड है, तो उसमें हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता ना। आपको कोई चीज चाहिए, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, करोड़ों लोग जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, तो सेम चीज हमारा भी एक मार्केट प्लेस है। आप जाइए, अपने मनपसंद चीज देखिए, फिर उसके बाद कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें हमारी पर्सनल टीम असिस्ट करती है आपको, तो वो चीज होता है। तो टेक बेस्ड सारा चीज है। सर रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया अब तक? लाइक पर्सन मतलब जो है वो मैं पूछ रहा रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ लाइक सीआर में आप काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दैट्स गुड। सर जैसे कि सर बिजनेस जो है सर फुल ऑफ रिस्क है सर, इसको माना जाता है जो एंटरप्रेन्योरशिप में सर आप फेलियर को कैसे मैनेज करते हैं सर? आपको बहुत सारे इस जर्नी में उतार चढ़ाव आए होंगे सर, कैसे मैनेज करते हैं सर? मैंने बताया कि मेरा थोड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है जब मैं छोटा था और इवन फैमिली में। तो जब भी बिजनेस हमने स्टार्ट कर रहे थे तो हमें बहुत सारे लोग थ्रू आउट द जर्नी मिले हैं, बहुत सारे सीनियर्स मिले हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग मिले हैं, बड़े छोटे सब मिले हैं। तो हमारे एक मेंटोर थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बिजनेस में हम फेलियर को डेली चेंज कर रहे होते हैं, हम ये गारंटी कर ही नहीं सकते कि हम सक्सेस हो सकते हैं। हम डेली काम करते हैं, डेली मेहनत करते हैं कि कितना कम हमारा फेलियर हो सके। ठीक है, तो ये आपका आंसर यही है कि हम रिस्क डेली लेते हैं, और जो हमारा रिस्क है सपोज 100% है, डेली 1% कम करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा उसमें एफर्ट हो सकता है। तो हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते। जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को गिरते हुए आप देखा है, तो यही रहता है कि हम डेली मेहनत करते हैं ताकि वो जो फेलियर है वो कम हो सके। हम उसको खत्म नहीं कर सकते, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, किसी का भी बंद हो सकता है। तो ये हमारे मेंटोर्स ने हमें सिखाया था, और उसी चीज को हम उसी मोटिवेशन से काम करते हैं कि हमें पता है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना फेलियर के चांसेस कम है। सिंपल। सर एक क्वेश्चन सेम बात पे थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा कि जैसे अभी हम कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो बाय अनफॉर्चुनेटली अगर बाय चांस आगे में ऐसा आता है, तो अगर हमारे आपके ऐप पे इतना इम्पैक्ट बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसको फेस करने के लिए कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर का तो कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, कुछ भी चीजें हम बनाते हैं तो ऐसा कुछ बता कुछ हमारा मानना है कि जो कि बहुत सारे बच्चों को इम्पैक्ट आपके ऐप पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो घर से दूर ही रहते हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं, तो यहाँ पे इस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा। ऑब्वियसली जब कोविड आया था, मुझे याद है हम लोग कॉलेज में ही थे और सबने हॉस्टल वेकेट करके सारे लोग घर चले गए थे। तो ऐसी सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं, बट हाँ पता है कि ये चीज परमानेंट नहीं रहेगी। जब भी बंद होगा घर से बाहर बच्चे निकलेंगे, क्योंकि ना तो कॉलेज बंद होना है, ना तो स्कूल बंद होना है,
ठीक है, बच्चों को निकलना, ना तो जॉब बंद होना है, घर से कितना देर आप काम कर लोगे, कुछ तो वर्कर्स जाएंगे ना कंपनी में, कुछ तो कॉलेज में पढ़ने टीचर्स आएंगे ना, पढ़ाएंगे ना, क्योंकि अगर आप स्कूल की बात करोगे तो शायद ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, जा सकता है, लेकिन लेकिन कॉलेज ऑनलाइन नहीं हो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है। इंजीनियरिंग ऑनलाइन नहीं की जा सकती, डॉक्टर आप ऑनलाइन नहीं बन सकते, ठीक है। तो वो चीजें के लिए आप घर से बाहर निकलोगे तो हो सकता है 2-3 महीने एक हमारा डाउन फेज हो सकता है इन फ्यूचर, कुछ भी ऐसा डिजास्टर होता तो हमारे लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। तो फिर उसके लिए कुछ तो ऐसा बैकअप प्लान रखा होगा आपने, ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसे होगा ऐसा। सच कोई बैकअप, हम इतना निगेटिव सोचते ही नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा। मतलब उसको फेस करने के लिए ऐसा कुछ हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है कि हाँ। हम उसमें बैकअप क्या कर सकते हैं, तो अभी तक तो ऐसा हमारे दिमाग में ना तो आया है और ना हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे दोस्तों के आगे ना आए। हैं ऑब्वियसली। Sir, as we aspiring entrepreneurs, sir, so what lesson you have taught me so that we be the future of entrepreneur? सिंपल, लाइक अगर कोई भी आपको आइडिया आता है उस पर आप अच्छे से रिसर्च करें, टाइम दें। लाइक बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गिव अप करने की कोशिश कर देते हैं। लाइक हम लगे रहें 2-3-4 जो भी एक टाइम पीरियड रहे कि एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड हमें इसको देना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस आप लगे रहिए, रिजल्ट क्या आपको माइंडसेट रहना चाहिए सर? माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। लाइक कि हम कुछ करने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, सिंपल है। सर रिस्क को लेकर क्या है, मतलब जैसे रहता है रिस्क, डर रहता है मान लीजिए। रिस्क के लिए मैंने अभी जैसे बताया कि रिस्क तो फिक्स है कि लाइक अगर बिजनेस है तो रिस्क है ही है, तो आप डेली मेहनत यही करेंगे कि जितना रिस्क कम कर पाए। तो सर आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो सर आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, तो मैं सक्सेस हूँ। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए पावर हो सकता है, तो मेरे लिए मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि अभी मैं जो करना चाहता वो मैं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए कोई मतलब काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आगे आप अपना बिजनेस कहाँ तक एक्सपेंड करना चाहते हैं? ऑब्वियसली पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड करना चाहूंगा कि लाइक जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं और वहां तक प्रॉब्लम है उसको मैं रिजॉल्व करूँ। जैसे सर आपने कहा, तो जैसे कि हम बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे जाके हम तो जैसे कि कोई पहली प्रायोरिटी तो जॉब ही होती है, पर सेकंड प्रायोरिटी सबकी बिजनेस होता है या स्टार्टअप होता है। तो जैसे आप ऐसा हम जैसे बच्चों को क्या बता सकते हैं जिससे कि हम अपने जैसे कि अगर आगे जाके कभी अगर जैसे कि कोई जॉब में इंटरेस्ट नहीं आया, अगर बाद में हमने स्टार्टअप खोला, तो आप ऐसे क्या बता सकते हैं कि जिससे कि हम उसमें थोड़ा मोटिवेशन रहे और उसको स्ट्रगल करने में मतलब सक्षम रहे, जिससे कि हम उसको सक्सेसफुली और पॉसिबल कर पाए। सी अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इस चीज़ की भी तो गारंटी है कि आप बिजनेस करने जाएंगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और बिजनेस करने के लिए आपको जॉब में क्या क्या करना होता है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, रॉकेट साइंस तो है नहीं बिजनेस को रन करना। उसमें वो सारे आपके नीचे भी एम्प्लॉय आएंगे, फिर वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप करके आ रहे होगे किसी कंपनी में। तो आपको वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी भी कंपनी को रन कैसे करते हैं, और उसके लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, अगर है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन फ्यूचर कि आपको आपके टीम वर्क कैसे करना होता है, माइंडसेट कैसे रहता है, आपके कलीग्स का, मालिक के साथ कैसे बिहेव करना होता है, तो वो सारी चीज़ें। नहीं सर, जैसे कि हर की फैमिली अलग होती है, हर की फैमिली की सोच अलग होती है कि वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा पहले जॉब करे, जिससे कि जॉब से वो होता है कि सेटलमेंट होता है, किसी पे बोझ नहीं होता, जैसे कि आप सैलरी ले रहे हो बस। और वैसे बिजनेस या स्टार्टअप करने पे स्ट्रगल होता है, बहुत ही बर्डन उठाना पड़ता है, ऐसी स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। तो बच्चे वो उन्हीं पे जाते हैं, जैसे कि आप खुद का मालिक होना तो सही रहता है ना, अब कोई किसी के पीछे काम करे, एम्प्लॉय बन के काम करे, तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मेरी फैमिली में बहुत हैं, पर उसमें वो अभी जॉब कर रहे हैं, पहले बिजनेस करते थे, अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जॉब में, तो उनको अभी इंटरेस्ट बहुत ही, उनको लग रहा है कि मेरी मनपसंद जॉब मिले बस। अब पहले वो बिजनेस करते थे, उनको उसमें इंटरेस्ट था, अब वो जॉब कर रहे हैं, अब उनको ये करना है कि अब मेरी मनपसंद की सैलरी की मिले, और वो ज्यादा काम नहीं हो, कम काम हो, पर सैलरी ज्यादा हो।
ऐसी स्टार्ट बच्चे अब ये सोच उन्हीं पे जाते हैं, स्टार्टअप पे जाते हैं या बिजनेस पे जाते हैं इसी। तो वो तो देखने वाली बात होगी ना, अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस करने का तो आप लाइक अभी रिसेंटली मैंने शायद असनी ग्रोवर का ही एक स्पीच मैंने सुना था, उसमें यही था कि लाइक अगर आप कितने महीने बिना सैलरी के बिना चीजों के आप काम कर सकते हो तो फिर आप बिजनेस में आओ, क्योंकि बिजनेस में आपको गारंटेड नहीं है ना कि सैलरी मिलनी है, बिजनेस ये भी गारंटेड नहीं है कि आपको कितने आवर काम करना पड़ेगा। तो वो चीज एक फिक्स करके आओ, अगर आप 10 महीने बिना सैलरी के काम कर सकते हो, 1 साल बिना सैलरी के काम कर सकते हो तो फिर बिजनेस में आओ, अदरवाइज तो फिर आपके लिए बिजनेस है ही नहीं। तो सिंपल वो माइंडसेट का है कि लाइक आप पहले से उस चीज को क्लियर, आप लोग देख के आ जाते कि नहीं यार फैसिनेटिंग है, मैं खुद का मालिक कैसे? आप सुंदर पिचाई भी तो एक एम्प्लॉई है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाते कितने इंडिया में? मुझे लगता है कि 99% जितने बिजनेस होंगे उनसे ज्यादा पैसा वो कमाता है। एक दिन के उसके 20-30 करोड़ रुपए हैं एक दिन के, तो कितने बिजनेस ऐसे कमाते एक दिन के 20 करोड़? कोई नहीं कमाता। तो फिर भी तो वो एम्प्लॉई है, बट ऐसा उसने सोचा नहीं था, वो भी मालिक ही है अपने बिजनेस में। तो बस वो ना स्टूडेंट्स की थोड़ी वो सोच होती है, माइंडसेट होता है ना, वो अपने आप से माइंडसेट, जैसे कि कोई एनवायरनमेंट हो जाता है, जैसे कि फैमिली में रिलेटिव हो और उनका बिजनेस है, अब वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और पर हम नहीं कमा रहे, हमारी फैमिली कह रही है तुम जॉब करो, ये बिजनेस में क्या जा रहा है, तुम बिजनेस नहीं संभाल पाओगे। तो ऐसे स्ट्रगलिंग में अब बच्चा क्या करे? ठीक है, पेरेंट्स अपनी जगह सही है, ठीक है, पेरेंट्स हमेशा चाहेंगे बच्चे सेटल हो जाएं, बच्चे का भला रहे, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पेरेंट्स हमेशा सही सोचते हैं। बट अगर आपका ड्रीम है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे कोई नई चीज करनी है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका वो माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं इतने घंटे मेहनत कर सकता हूँ, मैं इतने साल चेंज कर सकता हूँ, तो फिर आप आइए। अगर आप ये सोच के आएंगे कि लाइक बिजनेस बहुत आसान है, बिजनेस से मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा और बहुत जल्दी कर लूंगा, तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि हर दिन आपको डिमोटिवेट करेगा, यार 6 महीने हो गए मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, 1 साल हो गए कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अगर उस शॉर्ट टर्म गेम के लिए अगर आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेट होगे और आप गिव अप करोगे आप, लेकिन आप प्रिपेयर ही करके हो कि मुझे करना ही यही है, ठीक है। हो सकता है एक बिजनेस आपका सक्सेसफुल ना हो, लेकिन करना बिजनेस ही है, तो आप शायद 2 साल बाद दूसरा बिजनेस करोगे, लेकिन करोगे बिजनेस ही। तो उस माइंडसेट के साथ आओगे कि मुझे जॉब में जाना ही नहीं, प्लान भी है ही नहीं मेरे पास, तो फिर शायद आप एक टाइम आएगा जब आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। बट ये आओगे कि नहीं अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस जॉब कर लूंगा, तो जॉब ही करोगे आप, फिर बिजनेस नहीं होगा फिर आप। सर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? ये आजकल ट्रेंडिंग में है, बट बीइंग ए एंटरप्रेन्योर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चीज होती है, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो। अगर आप सोचो ना कि एलोन मस्क वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचता तो आज जो कर रहा नहीं करता, ठीक है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस एक काइंड ऑफ मिथ है, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं, नॉट ओनली जॉब बट एक जरूरी भी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू के पहलू अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ कोई और सही हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। आप चेंज कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आपको मेहनत करनी अपने लिए करनी, किसी और के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करोगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो मत करो, आप नहीं मिलेगा आपको तो मत करिए, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, बहुत सारे लोग 12 घंटे काम करते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हम 16 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा कभी सीजन चलता है, कभी कभी हमारा जैसे एक पीक टाइम होता है बिजनेस का, तो कोई भी बिजनेस आप गल्ले पे भी देखो, शादियों के सीजन में जो दुकान वाले होते हैं 20-20 घंटे दुकान खोल के बैठे रहते हैं, तो उनको कोई वर्क लाइफ बैलेंस सिखाने थोड़ी जाता है, उन्हें पता है कि यही धंधा करना है यार, उसके बाद तो 2 महीने जब ऑफ सीजन होगा मैं बैठ के बैलेंस ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मतलब है। तो वो एक काइंड ऑफ एक जो सोशल मीडिया ट्रेंड है उस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, पर्सनल ओपिनियन यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई चीज नहीं होता है, सब अपने आप फन के लिए कर रहे हो, अपने मजे के लिए कर रहे हो, अपने ड्रीम के लिए कर रहे हो, तो सिंपल है हल्का। तो सर आपके साथ कभी ऐसा कुछ केस हुआ है जैसे कि कोई बच्चा है और आपका कोई फेवरेट हॉस्टल हो, मतलब फेवरेट, वहाँ से कोई कंप्लेन आई हो या बाइजनेस क्रिएट हुई हो, ऐसा कोई आपके साथ केस सिनेरियो हुई है? सबसे पहले तो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का कोई फेवरेट नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, बच्चा भी हमारा यूजर है, तो हर बच्चा हमारे लिए सेम है। बच्चा चाहे किसी भी हॉस्टल से कंप्लेन आए, हम दोनों पहलू देखते हैं। अगर कंप्लेन जैसे मैंने पहले भी बताया वाजिब है, उसको सॉल्व करने लायक है और वो जेन्युइन कंप्लेन है, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। कोई सा भी हॉस्टल हो, छोटा हॉस्टल हो, बड़ा हॉस्टल हो, फेवरेट कोई नहीं है। सर अभी
पिछले बीच ऐसा एक सिनेरियो है था, मैं हॉस्टल का नाम ही लेना चाहूँगा। उसने खाने में कुछ अनवांटेड चीज़ मिला दिया था, तो वो बहुत वायरल हुआ था बीच में। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आगे होने वाला हो तो आप लीगली क्या एक्शन लेंगे उन पे? सी आपने जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं उससे पूरा ग्रेटर नोएडा वाकिफ है, ठीक है। कोई भी ओनर ऐसा करना नहीं चाहेगा इंटेंशनली। जो भी किया गया होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले तो वो हॉस्टल हमारे ऐप पे है ही नहीं। जिस हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं पिछले 3 सालों से वो हमारे ऐप पे नहीं है, जब से वो लॉन्च हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग के आई थिंक 2-3 महीने था, हमारा पहला यूजर वहाँ निगेटिव हुआ किसी एक्स रीजन से, उस रीजन से नहीं। तो उसके बाद हमने उस ऐप को प्रॉपर्टी को अपने ऐप से हटा दिया, ठीक है। अब रही बात जो सिनेरियो से बात करते हैं, तो उसमें मेरा जो ओपिनियन है बीइंग एग्रीगेटर, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। आप एक बिजनेस कर रहे हो, हॉस्टल एक बिजनेस है। कोई भी बिजनेसमैन वो जानबूझ के नहीं करा होगा, ठीक है। इंटेंशनली तो वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पैसे उतने ही जाने हैं। तो इंटरनली तो उनसे ही कुछ तो इंटरनल टीम वर्क में कोई फ्लो है, हो सकता है कोई उनको डिफेम करने के लिए किया हो सकता है बच्चों की गलती रही हो सकता है उनके यहाँ के एम्प्लॉय की गलती रही हो, खुन्नस रही हो, ठीक है। होता है, आपने मूवियों में देखा है कि ओनर अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ कह देता तो उसको निगेटिव करने के लिए कुछ ना कुछ लोग उसमें कर देते हैं। तो ये इसका अभी तक कोई हमारे पास पूरा प्रूफ नहीं आया है, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा किसकी गलती थी। बट ये जो भी था वो बहुत गलत था, जिसने भी किया था बहुत गलत किया था। आपको कोई प्रॉब्लम? ना 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 सर नेक्स्ट क्वेश्चन था सर हमारा कि जो न्यू यूजर है सर, उनको सर क्या कहना चाहेंगे आप जैसे आपका प्लेटफॉर्म क्यों यूज करें सर, क्या मतलब सर्विसेज बेहतर provide न्यू यूजर है और हमारा प्लेटफॉर्म क्यों यूज करें सर? सिंपल है कि लाइक अगर आज के डेट में अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि घर बैठे बैठे उनको हर वो इनसाइट मिल रही है, जैसे आपने अभी कुछ हॉस्टल्स का नाम लिया कि वहाँ पे ऐसे गलत चीज़ें हो गई थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए होता है ना, लेकिन आप कॉलेज फिल्टर करते हैं तो आप हर एक चीज़ देखते हैं, उनके रेटिंग्स, रिव्यूज़, वहाँ के एलुमनाई का प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ के फैकल्टी कितने क्वालिफाइड हैं। तो वो चीज़ हॉस्टल्स में कैसे करोगे आप, ठीक है। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हॉस्टल्स के बारे में ऐसा बताता है प्रोवाइडर ऐप के अलावा? सिंपल, तो उस चीज़ के लिए उनको यूज करना चाहिए कि वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी क्या पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ हुआ है क्या, नहीं, फूड क्वालिटी क्या वहाँ अच्छी मिलती है क्या, नहीं। तो वो सारी चीज़ें कैसे आप वेरीफाई करोगे, उसके लिए आप प्रोवाइडर ऐप यूज करें। बाकी हम जो बेनिफिट्स देते हैं एडिशनली वो तो देते ही हैं, वो हर साल हमारा बढ़ता ही जाता है। एक सर, आप अगर कोई नेक्स्ट सिटी में मूव करना चाहेंगे तो आपको मतलब कि क्या क्या वो होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपर उस वे में वो कर सके? क्या रिक्वायर? हाँ किसी भी नए सिटी में लॉन्च करने के लिए हम जी। एज ए एंटरप्रेन्योर हम क्या देखेंगे, मार्केट साइज क्या है और वहाँ पे हमारा बिजनेस कितना हो सकता है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, और क्या वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें हैं, कुछ होती हैं जो हम देखेंगे। एंड देन अभी तो ऐसा कोई रिसोर्स की हमें खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक टेक बेस्ड हम ऐप कंपनी है, तो हमारा सब कुछ है, बस सिटी ऐड करनी है और ऑपरेशन स्टार्ट करना है, दैट्स इट। तो बहुत ईजी है हमारे लिए किसी भी नए सिटी में एंटर करना। सर, तो नेक्स्ट चीज़ था आपका ऐप प्रमोशन, मतलब कि आप ऐप को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी चीज़, मतलब कहाँ कहाँ विजिट करते हो, ऐसा कुछ ऐसा जो मतलब जहाँ पे आप ऐप को प्रमोट करते हो ऐसा? ऐप को प्रमोट करने के लिए हमारे सबसे पहला तो हमारे यूजर सेटिस्फेक्शन रेट कितना है वो खुद ही प्रमोट करते हैं अपने जूनियर्स को, जैसे आप लोग को भी कुछ लोगों ने बताया ही होगा हमारे ऐप के बारे में। सेम तो हमारे यूजर सेटिस्फाइड जो रेट है उसके हिसाब से हमारा सबसे बेस्ट यूजर वहाँ से आते हैं। सेकेंडली जैसे बाकी चीज़ें की जा सकती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हैं, लोगों को एक तरीके से एजुकेट करते हैं कैसे हॉस्टल फाइंड होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से बच्चे ऑर्गेनिकली ही हमारे ऐप को फाइंड कर लेते हैं। तो कुछ पूछना? So sir, we are coming to the end, sir. Sir, what one lesson you want to give us, sir? That सिंपल, मेहनत करिए और पेशेंस रखें, रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट। सर, अगर कोई ऐसा न्यू बिजनेस, कोई ऐप आइडिया कोई किसी को लॉन्च करने में आया है, किसी के पास आइडिया है, तो उसको क्या मतलब स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो आई थिंक आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप लोग को बेहतर पढ़ाया जा रहा होगा, हम लोगों ने तो मैनेजमेंट नहीं करी है। तो अगर यूनिक टिप्स यही रहता है, सिंपल कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों ने फॉलो किए हैं या जो हम लोग सीखे हैं, कि सबसे पहले वही कि अगर आपका आइडिया है तो वो लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही आइडिया होगा,
वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितने लोगों तक की जा सकती है। लाइक अपना टाइम होता है टोटल अवेलेबल मार्केट, सैम होता है सर्विस अवेलेबल मार्केट, ठीक है। तो वो चीज़ें कितनी है मार्केट आप सर्वे करें। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने एक यूट्यूब पे गूगल पे कहीं आपने रील पे देखा कि एक आइडिया यूनिक आ गया और आपने इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। अपने दोस्तों से डिस्कस करें, मार्केट में अननोन लोगों से डिस्कस करें, ग्राउंड पे जा करके कि लाइक वो आइडिया जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो कितने लोगों की प्रॉब्लम है। एटलीस्ट सैम्पलिंग करें 100 50 200 लोगों का, एंड देन फिर उस पर सॉल्यूशन बनाए। सॉल्यूशन की भी सैम्पलिंग करें, क्या उनको वो चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्या उसके लिए लोग पैसे देने को तैयार है नहीं है कि है। क्योंकि आपका ये मोटिव नहीं होगा ना कभी भी एंटरप्रेन्योर बनने का सिर्फ आप किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा आपका पहलू ये होगा ना कि उससे आप पैसे भी बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आइडिया सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उससे पैसे भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं बैकएंड में देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को पूरा एक होमवर्क करें, देन फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो भी है या सर्विस जो भी है वो लॉन्च करें एंड मार्केट में फिर उतरें। तो थैंक यू सर आपका टाइम के लिए। ओके, वेलकम। So, sir, thank you for very insightful moment, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे आंसर दिए और आपने हमें थोड़ा इंस्पिरेशन दी, थोड़ा मोटिवेट किया कि थोड़ा अपने लक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हार्डवर्क कीजिए और ऐसे माँ बाप के पैसे थोड़ा वेस्ट नहीं। थैंक यू।